Hello again students. As you know that we have started the chapter. Its name is Summer of the Beautiful White Horse, and we have started the story also. Half story we have completed. Now we move ahead to the next story. What happened? As you know that Morad has stolen the horse, but he is not believing that he already had stolen it. He is saying that I am not supposed to stolen the horse. After few days I will return it soon. So how could you say that I have stolen the horse? That type of thinking Morad is having. Aram has a fear in his mind because at one side their tribe is famous for the honesty and they have stolen the horse. Okay, and Aram has a fear about his uncle Khusro. In the previous lecture I explained about how means what is the nature of Uncle Khusro, how he was very strict. Even their fire in their house the fire struck out, then also Aram's uncle, that is Uncle Khusro, have no fear in his mind. वो डरे नहीं बिल्कुल. Actually he rode over his son Arak के ऊपर वो चिल्ला है. Means that is the nature of Uncle Khusro. So whenever they have taken ride over the horse and Murad was crazy behind the horse, he was just roaring in a big voice so that Aram has fear that maybe it come to know to Uncle Khusro, then what would be our situation, that Aram know very well. इसलिए आरम के मन में डर है कि अगर उनको पता चल गया कि ऐसे कुछ हुआ है तो हम तो गए. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे क्या होता है देखो. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zora, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. So here, Aram is saying here that Morad has all the qualities, means Morad get all the qualities of his uncle Khusro. Actually his father Zora is opposite of that nature. As you all are saying that son is like father. ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि son जो होता है वो father की तरह ही होता है. But here it is opposite. वो उनकी तरह नहीं था. He got the qualities of his uncle. उसके uncle की qualities उसके अंदर थे because Zora, the father of Morad, was a very practical person. वो बहुत practical थे. वो ऐसे सब गुंडागिरी दादागिरी ऐसे सब नहीं करते थे. बट मोराड के अंदर वो क्वालिटीज थी. और ऐसी गुंडागिरी कौन करते थे? अंकल खुसरो. तो आरम यहाँ पे बता रहा है कि मोराड हैज अ क्वालिटी, गेट द क्वालिटीज फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बिकॉज अंकल खुसरो इज द प्रेजेंट कैरेक्टर हियर एंड हिज फादर जोरा, मोराड्स फादर, वाज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. सो हियर आरम इज सेइंग दैट आवर ट्राइब इज कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट. कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट का मीनिंग होता है अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसेटल्ड. मीन्स नो वन कुड डिफाइन एनीबडी. हम लोग किसी के बारे में कुछ डेफिनेशन नहीं दे सकते. सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटीज है. वो दिखता कैसे है और उसकी क्वालिटीज क्या है वो हम लोग देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. ऐसा आरम यहाँ पे बता रहा है. फिर क्या होता है देखो. वी रोड एंड माई कजिन मोराड सैंड. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Morad said, "Get down, I want to ride alone." Here, the Aram is saying that whenever they started the ride, Morad was just roaring, and they were still in the countryside. Means they were only their surroundings there, and at least some of the neighbors had seen them that they were riding the horse. So at last, I said to my cousin that here Aram is saying to Morad, I want to ride over this horse, so let me give the chance. मुझे भी हॉर्स के ऊपर राइडिंग करनी है तो मुझे एक बार तू राइड करने दे. इसलिए यू गेट डाउन, तू नीचे उतर और मुझे बैठने दे. दैट रिक्वेस्ट इज मेड बाय आरम. आरम ने ऐसे रिक्वेस्ट की. फिर क्या होता है देखो. यहाँ पे कन्वर्सेशन में एडिट करूंगी, तुम लोग ध्यान देना. एट लास्ट माई कजिन मोराड सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said. Get down. The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said. But remember, you have got to let me try to ride alone. I got down and my cousin
shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into the flurry of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. The sun was coming up. "Now it's my turn to ride," I said. My cousin Murad got off the horse. "Ride," he said. Now, as the request made by Aram, but Murad is saying that I want to ride the horse alone. So let me ride the horse first. Who is saying so? Aram. Aram is saying, sorry. Murad is saying this. Murad is saying that let me ride the horse first because and alone because now means अभी जो हमने हॉर्स को दोनों मिलके हमने उसके ऊपर राइड की है. Now I want to ride the horse alone. मुझे भी अकेले को राइड करना है. So let me ride. तो मुझे राइड करने दे. ऐसे वो यहाँ पे बता रहा है. फिर क्या होता है देखो. That Murad has means Aram got down from the horse and Murad was seated alone. So whenever he was seated there, he was very confident. What we can say, वो बहुत ही confident boy था. उसने घोड़े को बोला देखो, Aram is saying that for your safety, let me sit behind you. तेरी सेफ्टी के लिए मुझे मोराड पीछे बैठने दे. पर मोराड रेडी नहीं था. वो बोल रहा था कि मुझे तो अकेला ही राइड करना है. So उसने यहाँ पे बोला देखो वजीर. देखो this is the name of the horse. Actually he didn't know the name of the horse. मोराड को घोड़े का नाम पता नहीं था. पर उसको इतना एक्साइटमेंट था अंदर से कि उसने नाम भी दे दिया हॉर्स को वजीर. जैसे ही वो घोड़े के ऊपर बैठा उसने बोला वजीर रन. उसने घोड़े को ऑर्डर दिया और उसके हिंड लेग यानी जो पीछे के घोड़े के लेग थे उसके ऊपर थोड़ा पुश किया जिसकी वजह से द हॉर्स वाज स्नोड विद अ फ्लरी ऑफ स्पीड. वैसे घोड़ा चिल्लाया जोर से और वो दौड़ना उसने स्टार्ट किया. Within the 5 minutes of time, he went near the irrigation ditch and behind the we can say that the fields. He had taken a ride and within 5 minutes he come back. Now the sun is coming up. You know that they were started this event at 4 o'clock. But now it's a time up and the sun is rising. अभी सूरज जो थे उठना स्टार्ट हो गया. अभी करे तो क्या करें. So Aram told Murad that let me ride now. फिर आरम ने बोला कि देख अभी तूने तो राइड कर लिया अभी मुझे राइड करने दे क्योंकि मुझे घोड़े के ऊपर राइड करनी है. अभी क्या होता है देखो. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. Whenever it's a turn of Aram, whenever he sat over the horse, he has having a fear. तुमको पता है जैसे सपोज एग्जांपल ले लो तुम लोगों को कार चलानी नहीं आती है बराबर और किसी ने तुमको बोल दिया चलिए कार ले ले ये कार की चाबी ले ले और चलाना स्टार्ट कर. अगर कोई क्रेजी पर्सन होगा मोराड की तरह तो वो क्या करेगा कार के ऊपर बैठ के उसको आराम से चला भी लेगा. बट जनरल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. वो कोई भी हो बहुत ब्रेव है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते. बट उनका एक सबका एक नेचर होता है. दैट इज द वेरी फ्री नेचर वी कैन से दैट मोराड इज हैविंग. तो अगर आराम बैठा तो इट्स नेचुरल कि उसको वो फियर आने ही वाली थी मन में कि अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा. इस तरह की फियर उसके माइंड में थी. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो कि जैसे ही आराम बैठता है तो ऑटोमेटिकली द फियर कम्स इन हिज माइंड. उसके माइंड में एक डर आता है और जिसकी वजह से वो मोराड बोल रहा है कि ये घोड़ा तो मूव ही नहीं हो रहा है. सो मोराड हैज गिवन सम एडवाइस टू आरम. मोराड ने आरम को एडवाइस दिया कि पीछे के लेग्स के ऊपर उसको थोड़ा मसल्स के ऊपर प्रेशराइज कर जिसकी वजह से घोड़ा दौड़ेगा. सो आरम को माइंड में डर है कि पता नहीं क्या होगा तो इसकी वजह से वो अप एंड डाउन हो रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ. ऐसी दुविधा किसके माइंड में है आरम के माइंड में. फिर क्या होता है देखो. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of the Dikran Albanian where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. Here. Now, as according to Murad, because Murad has given the advice to Aram, so Aram kicked the back muscles of the horse and the horse started to snorted and started to run. But once the horse started running, then Aram doesn't
get anything that what I have to do, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रोकूं, उसको कुछ पता ही नहीं था. Just the horse started run. हॉर्स ने रनिंग स्टार्ट कर दिया, पर उसको रोकना कैसे है इसको तो पता नहीं है. अभी वो क्या होता है देखो, अभी वो डर गए क्योंकि हॉर्स कहाँ से जा रहा था, फ्रॉम द इरिगेशन डीच देन टू द वाइनर ऑफ डिकरन हेल्मेनियन. डिकरन हेल्मेनियन इज द नेम ऑफ द ओनर ऑफ दैट फील्ड. डिकरन हेल्मेनियन एक पर्सन है, उसका वो वाइनर है, उसका फील्ड है. वहां पे ये हॉर्स जहां वो लेके जा रहा था, मीन्स आरन को पता नहीं है कहाँ जा रहा है, हॉर्स ऐसे ही दौड़ रहा था क्योंकि आरन डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स. क्योंकि आरन को पता नहीं तो हॉर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं. फिर वो जा ही रहा था. माय कजिन मोराट केम रनिंग डाउन द रोड. फिर मोराट को ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ही वाज रनिंग टुवर्ड्स द रोड, डाउन द रोड. उसने रोड के नीचे दौड़ना स्टार्ट किया. माय कजिन मोराट केम रनिंग डाउन द रोड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी हियर. मोराट ने उसको सिंपैथी दी गाइस. मोराट हैज गिवन द सिंपैथी टू आरन दैट डोंट वरी अबाउट यू, दैट नथिंग वुड हैपन टू यू. हम लोग थोड़े ही समय में हॉर्स को लौटा ही देने वाले हैं, इसलिए बी काम. ओके, और धीरे धीरे हॉर्स को चला. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड. माय कजिन मोराट वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डीच. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. हॉर्स ने इसको नीचे गिरा दिया. आरम जो है वो बैठ गया. ओके, और जैसे ही आरम वहां पे बैठ गया, द हॉर्स दे वर नॉट गेटिंग द हॉर्स. उनको घोड़ा नहीं मिल रहा था क्योंकि रोड के नीचे घोड़े ने आरम को गिरा दिया और वो चला गया. मोराट ने उसको सिंपैथी दी, बट घोड़ा कहाँ है, वेयर इज द हॉर्स? क्योंकि हॉर्स तो उनको मिल ही नहीं रहा था, उन्होंने तो चुरा के लाए थे हॉर्स को, तो हॉर्स नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? सो दे वेर रन बिहाइंड द फील्ड. जहाँ जहाँ से वो घोड़ा दौड़ा था वहां उसके पीछे वो दौड़ रहे थे और उनको घोड़ा नहीं मिल रहा था. नाउ दे कम इन वरी. अभी वो टेंशन में आ गए कि अभी करे तो क्या करे, घोड़ा तो नहीं मिल रहा है. सो क्या हुआ देखो यहाँ पे आगे. ऑल राइट, उनको आधे घंटा जितना लग गया तो भी उनको घोड़ा तो नहीं मिल रहा था. मोराट हैज गिवन सिंपैथी टू आरम कि कोई बात नहीं, हम लोग उसको लेके आते, कहीं तो गया होगा. फिर आगे क्या होता है देखो. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू? आई सेड. Well, he said, we will either take him back or ride him until tomorrow morning. थोड़े समय के बाद मोराट हैज ब्रॉट द हॉर्स. मोराट जो है वो हॉर्स को लेके आता है और यहाँ पे वो बोल रहा है कि अभी घोड़े की राइड तो हमने कर ली. सन हैज बीन राइजन ऑलरेडी. ओके, सन जो है वो भी राइज हो चुका है, तो अभी घोड़े को छुपाए कहाँ पे? क्योंकि घोड़ा जो है वो डेफिनेटली दे हैव स्टोलन दिस हॉर्स, तो अभी उसको कहाँ रखे? दे हैव अ टेंशन इन देयर माइंड. वो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो, हम लोग घोड़े को एक तो कहीं पे छुपा देते हैं. ओके, और कुछ भी हो जाए, एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, they are not interested to share this news about them in their tribe. उनको ये जो न्यूज़ थी घोड़े की, उनको उनके ट्राइब के अंदर शेयर नहीं करनी चाहिए. क्या होता है अगर वो शेयर करते तो? यू नो, दे गॉट द पनिशमेंट. उनको पनिशमेंट मिलती. दे विल गेट द पनिशमेंट आफ्टरवर्ड्स. क्योंकि उनकी ट्राइब ऑनेस्टी के लिए फेमस थी और उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, घोड़े को लेके आते हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट द पनिशमेंट. ये उनको पता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ उनके फैमिली में या उनके ट्राइब में किसी को पता चले. और घोड़ा इतने जल्दी उनकी लौटाने की इच्छा नहीं थी. तुमको पता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन रिगार्डिंग द थिंग, एंड वंस वी गेट द थिंग, आफ्टर फ्यू डेज, अप टू फ्यू डेज वी हैव अटैचमेंट विद दैट थिंग. थोड़े समय के लिए हम लोग उसको ही लेते. एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारी नई साइकिल हो या नई एक्टिवा पापा अगर लेके रहते या बाइक लेके देते हैं, तो तुमको ऐसा लगता है कि पूरे दिन में राइड ही करता रहो उसके ऊपर. अगर पापा बोलते हैं अभी रख दो, तो तुम्हारा जी भरता नहीं है. सेम थिंग हैपेंड विद आरम एंड मोराट. सेम थिंग इनके साथ हुई. उनको भी ऐसा लग रहा था कि इतने से राइड में उनका मन नहीं भरा, उनको और राइड्स लेने थे, इसलिए उनका मन बदल गया कि अभी घोड़े को वापस थोड़े दिनों के बाद देंगे, अब तो नहीं देना है. पर अभी रखे कहाँ घोड़ा? ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम. वो क्या आइडिया करते हैं देखो. आई न्यू, वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड. आई नो अ प्लेस. ही सेड. हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time, and he had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said,
हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? मोराट और आरम का कन्वर्सेशन है। आरम ने मोराट को पूछा कि तू इसको कहाँ छुपाने वाला है? मोराट ने बोला कि देखता हूँ, मैं कहीं पे तो छुपाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे सामने हॉर्स इसलिए लेके आया कि यू हैव ऑल्सो लॉन्गिंग्स फॉर राइडिंग द हॉर्स। तेरे अंदर भी बहुत बड़ी डिजायर थी कि घोड़े के ऊपर हम लोग राइड ले, इसलिए मैं तेरे पास लेके आया। पर मुझे और कुछ समय के लिए, मोराट बोल रहा है ये, कि और कुछ समय के लिए मुझे हॉर्स के ऊपर राइडिंग करनी है, तो मैं तो डेफिनेटली आई विल नॉट रिटर्न इट सून। मैं इतने जल्दी तो हॉर्स को देने वाला नहीं हूँ, तो मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ जिसकी वजह से ये किसी को पता भी ना चले और हॉर्स को मैं वहाँ पे छुपा के आता हूँ। तो आरम ने बोला कि डेफिनेटली आई एम श्योर नाउ दैट यू हैव स्टोलन दिस हॉर्स फ्रॉम एनीवन, समवन एल्स, कि तूने कहीं से ये घोड़ा चुराया हुआ ही है, क्योंकि इसीलिए तू ऐसे बहाने बना रहा है। पर आरम बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, मैं उनको वापस करने ही वाला हुआ, तो मैं थोड़े समय के लिए मैं घोड़ा मेरे साथ रखने वाला हूँ, क्योंकि एवरी मॉर्निंग आई वॉन्ट टू राइड दिस हॉर्स, हर मॉर्निंग में मुझे सुबह ये हॉर्स के ऊपर राइडिंग करनी ही है। जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं ये हॉर्स को वापस कर दूंगा। ऐसी जो कम्युनिकेशन है उनके दोनों के बीच में चल रहा है। किसके दोनों के बीच में? आरम एंड मोराट के बीच में। फिर आगे वो क्या बोलते हैं देखो, Now, until this morning, he said, "Are you telling the truth?" I said, "Of course not." He said, "But we have found out that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning." "All right," I said. He walked over the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Hathvijan. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. अभी उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। आरम उसको समझा रहा है, तो ऐसा काम मत कर, लेट रिटर्न द हॉर्स, हॉर्स को रिटर्न कर दे, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को पता चला तो हमारे ऊपर का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो निकल जाएगा। बट मोराट जो है, इट कम्स इन ग्रीड, हमको उसके मन में ऐसे लालच आ गई कि नहीं, मुझे ये तो नहीं लौटाना। सो उन्होंने वो चलते गए और एक जगह पे उनको जगह मिली। दैट इज द वाइनयार्ड रिलेटेड टू द ओनर फैथवेजन। फैथवेजन नाम का जो पर्सन है, उसका वाइनयार्ड था जो डेजर्टेड था। डेजर्टेड मीन्स खाली था, वहाँ कोई आता नहीं था। सिर्फ वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ अल्फाल्फा ग्रास उगी थी और ओट्स उगे हुए थे। अदरवाइज वहाँ पे कोई आता भी नहीं था, क्योंकि एट वन टाइम इट वॉज वेरी फेमस। एक टाइम था कि ये फील्ड बहुत फेमस था, पर अभी वहाँ कोई नहीं है। नो वन इज देयर, इट वॉज डेजर्टेड फार्म। वहाँ पे सिर्फ ओट्स और अल्फाल्फा जो ग्रास है, अल्फाल्फा इज द टाइप ऑफ ग्रास, वो उगी है। वहाँ पे दूसरा कोई नहीं था। फिर क्या हुआ देखो, इट वॉजंट, वी बिगेन वॉकिंग होम। हम लोग घोड़े को वहाँ पे उन्होंने रख दिया। कहाँ पे? इन द फार्म ऑफ हथवेजन। उसके वहाँ पे फार्म में रख दिया और अभी वो घर की ओर वापस लौट रहे हैं। फिर क्या होता है देखो, इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can't get it want to do anything. I want it to do. Horse understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with the horse. He said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one. He said. Well, I said. I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. You are still a small boy. He said, when you get it to be 13, you will know how to do it. अभी इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन चल रहा है। वो कन्वर्सेशन ऐसा है स्टूडेंट कि आरम उसको बोल रहा है कि as you have taken this horse for first time, then how friendly you are with the horse. How it could be possible? आरम को क्वेश्चन है कि पहली बार तू हॉर्स के ऊपर बैठ रहा है, हॉर्स ने तुझे बैठने कैसे दिया? तुमको पता है कि कोई भी एनिमल्स को कंट्रोल में पहले करना पड़ता है, देन एनिमल्स कुड अलाउ अस टू राइड ओवर देम। तो ये मोराट को पहली बार वो हॉर्स दिखा था, तो उसने कैसे बैठने दिया? आरम उसको बोल रहा है। सो मोराट इज सेइंग दैट आई हैव सम अटैचमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स. इट इज अ वेरी ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाई द हॉर्स अलाउड मी टू सिट. ऐसे मोराट ने कितने सिंपली बोल दिया देखो। और आरम बोल रहा है कि ऐसे तो इतने इजीली कैसे बोल सकता है? कौन सा अंडरस्टैंडिंग, कौन सा अटैचमेंट? आरम डिडंट गेट एनीथिंग। आरम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोराट उसको क्या बोलता है बता, यू आर वेरी यंगर, व्हेन यू विल बी 13 यू कम टू नो ऑल द थिंग्स. कितना कॉन्फिडेंट हुआ है देखो मोराट, कितनी इजीली वो बोल रहा है कि तू अभी छोटा है, जब तू मेरे जितना 13 ईयर्स का हो जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा. मीन्स देखो 13 ईयर्स कुछ ज़्यादा एज नहीं होती, तो भी वो कितना कॉन्फिडेंट है देखो.
उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तू अभी छोटा है, जब तू मेरे जितना हो जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। यानी देखो कितना कॉन्फिडेंस है मोराड के अंदर, और वही एक कॉन्फिडेंस की वजह से वो हॉर्स के ऊपर राइड कर पाए। बाकी इट इज़ नॉट इजी टू राइड द हॉर्स, यू नो, उनको पता है कि कोई भी हॉर्स के ऊपर राइड नहीं कर सकता। फिर आगे देखते हैं, देखो नाउ a simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you know, or you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. आरम घर पे चला गया उसके, because Morad and Aram were living in different houses. They were cousin, okay? They were cousin brothers. तो आरम घर पे गया, पेट भर के मस्त उसने नाश्ता किया. And that afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the older country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of the loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. This is the climax of the story, students. What is the climax? देखो, वो घर पे गया, उसने नाश्ता किया, उनका थोड़ा सा एक पार्लर था, यानी छोटा सा होटल जैसा था, और वहाँ पे उनके ट्राइब के अंदर लोग वहाँ पे जैसे नाश्ता खाने आते थे पैसे देके। अंकल खुसरो वहाँ बैठे हुए हैं, वो थोड़े टेंशन में है, ओल्ड डेज, तुमको पता है ट्राइबल पीपल कभी एक जगह पे नहीं रुकते, आज यहाँ पे तो कल वहाँ पे, तो वो पुराने डेज याद कर रहा था। और जो आरम की मॉम है, उन्होंने उनको कॉफ़ी और सिगरेट्स ला के दिए, ही वॉज सिपिंग द सिगरेट्स, और वो सोच रहा था कि अभी हमारे पुराने डेज बहुत अच्छे थे, यहाँ तो ठीक ठीक ऐसा सोच ही रहा था। उतने में वन पर्सन केम ओवर देयर, हिज नेम वाज जॉन बायरो। एक पर्सन वहाँ पे आया, ही वॉज अ सैड गाय, ही वॉज वेरी, वी कैन से दैट मिसिंग द कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंट जो है वो चला गया था, उसके अंदर कुछ भी बचा नहीं था, वो लोनली बैठा हुआ था। अभी तुमको पता है अंकल खुसरो कैसा है, जो बैठा हुआ है ऐसे लोनली, उसको भी वो बैठने ना दे वहाँ पे, बराबर कि नहीं। तो अंकल खुसरो ने उसको पूछा व्हाट हैपन, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से व्हाट हैपन। वो डर गया वो जॉन बायरो, क्योंकि वो एक तो पहले से ही थोड़ा शाय इंसान था। उसने बोला कि 1 महीना हो गया, माई हॉर्स इट वॉज वाइट मिसिंग, 1 महीने से मेरा वाइट जो हॉर्स है वो जो है वो खो गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। लास्ट 1 मंथ आई एम सर्चिंग इट आउट, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। बस क्लाइमैक्स है अभी आरम के माइंड में डर आया कि नहीं, क्योंकि वही वाइट हॉर्स जो है वो किसके पास था, मोराड के पास। आरम को ये बात पता थी, पर अभी हमें ये देखना है कि आरम जो है वो मोराड को बताता है या जॉन बायरो को बताता है कि भाई तेरा घोड़ा हमारे पास है, या अंकल खुसरो उसका रिएक्शन क्या देते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।